آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا پیغام بھی ہے۔ یہ کہانی عرب کے اس بے آب و گیا صحرا کی ہے جہاں ظلمت کی رات پھیلی ہوئی تھی، جہاں لوگ پتھر کے بتوں کو خدا مانتے تھے، جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی، جہاں عورت کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا، جہاں قتل و غارت کو بہادری اور شراب و جوا کو شان سمجھا جاتا تھا۔ اسی عرب کی سرزمین پر ایک ایسا عظیم انسان پیدا ہوا جس نے اس تاریک دنیا میں روشنی پھیلائی، جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، جس نے غلام کو آقا کے برابر کھڑا کیا اور جس نے یہ بتا دیا کہ انسان کا اصل مقام کہاں ہے۔ وہ عظیم ہستی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی رحمت اللہ عالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت پورا عرب جہالت کی آگ میں جل رہا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے خداؤں کو پوجتا، قبیلوں کی دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھیں، خون بہانا فخر سمجھا جاتا تھا۔ انہی حالات میں ایک معصوم بچہ اپنی ماں آمنہ کی گود میں آیا جس کا نام رکھا گیا محمد، یعنی قابل تعریف۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں کہ سب حیران رہ گئے۔ قیصر روم کے محل کے کنگرے ہل گئے، آتش کدے بجھ گئے، اور کچھ اہل کتاب نے اندازہ لگا لیا کہ آخری نبی تشریف لے آ چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے یتیم تھے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور چند سال بعد والدہ آمنہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اس طرح آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب اور پھر آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ بچپن ہی سے آپ کا کردار اتنا صاف اور اتنا سچا تھا کہ لوگ انہیں الامین اور الصادق کہنے لگے۔ مکہ جیسے شہر میں جہاں جھوٹ بولنا ایک عام بات تھی، وہاں ایک سچا، دیانتدار، نرم دل انسان ہونا لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ آپ نہ جھوٹ بولتے، نہ دھوکہ دیتے، نہ کسی کو تکلیف دیتے۔ جوانی میں آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی حسن اخلاق کی وجہ سے ہر شخص آپ سے متاثر تھا۔ جب آپ کی سچائی کی شہرت پھیل گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنی تجارت کے لیے منتخب کیا۔ انہی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے ہر مشکل لمحے میں ساتھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں انتہائی سادگی اور عظمت سے گزر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، بردباری اور حسن سلوک کی گواہی وہی لوگ دیتے تھے، لیکن یہ دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جس نے عرب کی صدیوں پرانی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ 40 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے راہ روی، لوگوں کی جہالت، عورتوں کی بے قدری، غلاموں کی تذلیل اور جھوٹ کے عام چلن پر غمزدہ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں پہاڑوں پر بیٹھ کر غور و فکر کرتے کہ آخر سچ کیا ہے، انسان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے انسانیت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا بیٹھے تھے، اچانک ایک نورانی ہستی نمودار ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ۔ لیکن حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور دے کر پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی پہلی وحی تھی، یہی وہ لمحہ تھا جہاں نبوت کا آغاز ہوا، جہاں انسانیت کو ایک نیا سورج ملا، جہاں روشنی نے جہالت کے اندھیروں کو چیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے تو جسم کانپ رہا تھا، روح لرز رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک محبت، اعتماد اور عقیدت کی علامت بن گئے۔ اللہ کی قسم، وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے سنتے ہی کہا، یہی وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟
वरका ने कहा, जो भी इस पैगाम को लेकर आया उसे दुश्मनी का सामना करना पड़ा। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला जारी हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा पैगाम दिया गया था जो न सिर्फ मक्का के बुत परस्तों बल्कि दुनिया भर के जाबरों, जालिमों और झूठों के लिए खतरा बनने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से अपने करीबी लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु शामिल थे। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, इंसाफ और तौहीद का पैगाम था। ये पैगाम कि अल्लाह एक है, कि ना कोई बुत खुदा है, ना कोई इंसान खुदा का शरीक है, कि सब इंसान बराबर है, चाहे अरब हो या अजमी, गोरा हो या काला। ये सुनकर मक्का के सरदार तलमला उठे। उनके बनाए हुए झूठे खुदा, उनके कबीलाई गुरूर, उनकी दौलत की दीवारें, सब कुछ इस्लाम के सामने कमजोर पड़ने लगी। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा और दीगर सरदारों ने यह महसूस किया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फैल गई तो उनका इक़्तिदार खत्म हो जाएगा, उनके बुत टूट जाएंगे, उनके खजाने खत्म हो जाएंगे। चुनाचे जुल्म का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। कभी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हा को तपती रेत पर लटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता और उनसे कहा जाता कि लातो उज़्ज़ा को मान लो, मगर वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ दोहराते, अहदुन अहदुन, वो एक है, वो एक है। कभी हजरत खुबाब बिन अलर्त को जलते हुए कोयलों पर लटा दिया जाता, कभी हजरत समिया और यासिर को बर्छियों से मार दिया जाता। समिया वो पहली औरत थी जो इस्लाम की राह में शहीद हुई। उन सब मजालिम के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है, और खुद रातों को रो रो कर अपने रब से दुआ मांगते। एक दिन कुरैश के सरदार अबू तालिब के पास आए और कहा, मोहम्मद से कहो या तो अपना दीन छोड़ दे या फिर हम उसे खत्म कर देंगे। अगर ये मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दें तब भी मैं इस दीन को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि अल्लाह कामयाबी दे या मैं राह हक में फना हो जाऊं। ये सुनकर अबू तालिब खामोश हो गए और कहा, ए मेरा भतीजे, जा जो चाहे कहे, मैं तेरे साथ हूं। जब कुरैश ने देखा कि ना जुल्म इस्लाम को रोक सका, ना लालच और ना ही धमकियां, तो उन्होंने एक नया हरबा आजमाया, सोशल बाइकॉट। बनु हाशिम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हामियों को मक्का से बाहर एक तंग तारीक वादी में कैद कर दिया गया। उस वादी को शोबे अबी तालिब कहा जाता था। ये 3 साल का जमाना ऐसा था कि भूख से बच्चे बुलबुलाते, औरतें रोती थी और मर्दों की आंखों में आंसू होते थे, मगर जबान पर एक ही बात थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। खाने पीने का सामान बंद, रिश्तेदारियां मुनक़ता, तिजारत खत्म, मगर अहले ईमान ने सब्र किया। बाज़ औक़ात दरख्तों के पत्ते और चमड़े तक उबाल कर खाए जाते, लेकिन किसी ने ईमान को न छोड़ा। उन्हीं दिनों हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा और अबू तालिब वफात पा गए। इन 2 अजीम सहारों के चले जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गम से भर गया। ये साल तारीख में आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाता है। मक्का की ज़मीन अब तंग हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, शायद वहाँ के लोग हक की बात सुने, मगर ताइफ के लोगों ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि गली के बच्चों को लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन खून से भर गए। पड़े एक दरख्त के नीचे बैठे और आसमान की तरफ देखा, दिल टूटा हुआ, जिस्म लहू लहान, मगर जुबान पर शिकवा नहीं था, सिर्फ दुआ थी, ए मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी परवाह नहीं। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इनाम दिया जो फ़कत आप ही के लिए मखसूस था, सफ़रे मेराज। एक रात जब सब सो रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से आसमानों की सैर कराई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, अंबिया कराम से मुलाकात की और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल किया। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आए और ये वाक़या सुनाया तो कुफ़ार ने मजाक उड़ाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का फ़ौरन कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ज़रूर सच कहा है। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया। अब मक्का की ज़मीन तंग से तंग तर हो रही थी। हर दिन हर रात ईमान वालों पर जुल्म के नए बाब खुलते थे, मगर दूसरी तरफ एक नई उम्मीद की किरण मदीना से फूटने लगी। मदीना, जो उस वक्त यफरिब कहलाता था, वहाँ के कुछ सच्चे दिल वाले लोग हज के मौके पर मक्का आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर दिल से ईमान ले आए। उन्होंने अर्ज़ किया, आइए हमारे शहर में हम आपको अपना नबी मानेंगे, अपनी जानो माल से आपका दिफा करेंगे। ये बैत अक़बा थी, एक खामोश इनकलाब की शुरुआत। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो मदीना की तरफ हिजरत करे। मक्का छोड़ने का हुक्म था, लेकिन वो ज़मीन जहाँ उनकी माँ दफन थी, जहाँ उनका बचपन गुजरा, वो दरो दीवार, वो पहाड़, सब कुछ छोड़ना आसान नहीं था। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और दर्जनों सहाबा ने मक्का छोड़कर मदीना का रुख किया। आखिरकार खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के साथ रात के अंधेरे में हिजरत फरमाई को घेर लिया था, मगर अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। जब कुफ़ार ने दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पाया, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए हुए थे। उधर रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर गारे थौर की तरफ जा चुके थे। दुश्मनों ने गार का मुहासरा किया, मगर अल्लाह ने मकड़ी के जाल और कबूतरी के घोंसले से उनकी हिफाजत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब गार में कहा, या रसूलल्लाह, अगर वो नीचे देख ले तो हमें देख लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए अबू बकर, दो के साथ तीसरा अल्लाह है, जिसने इस्लामी तारीख का आगाज़ किया, जो आज भी हिजरी तकवीम की बुनियाद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो एक नए दौर का आगाज़ हुआ। लोग घरों की छतों पर चढ़कर नारे लगा रहे थे, चांद हम पर तुलू हुआ है वदा की वादियों से। मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक पनाहगाह नहीं दी, बल्कि एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर करवाई, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम किया और एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जो अदल, मोहब्बत और मुसावात पर कायम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा आइन बनाया, मीसाक़ मदीना, जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल को एक रियासती निज़ाम में जोड़ दिया गया। मदीना में इस्लाम की रोशनी फैलती जा रही थी, मगर मक्का के सरदार ये बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने हर तरफ से मदीना को मुआशी और समाजी तौर पर दबाव में लाना शुरू किया। बात सिर्फ धमकियों तक न रही, बल्कि खुली जंग की सूरत इख्तियार कर गई। पहली बड़ी जंग हुई, जंगे बदर। 313 मोमिन, निहत्ती फौज और सामने मक्का के 1000 सिपाही हथियारों से लेस, जंग के माहिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात अल्लाह के हुजूर दुआ की, ए रब, मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो रोए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अल्लाह ने फरिश्तों के साथ नुसरत भेजी और बदर का मैदान ईमान वालों की फतह का ऐलान बन गया। अबू जहल, उतबा, शैबा सब मारे गए। इस्लाम का पहला बड़ा इम्तिहान कामयाबी से गुजर गया। फतह बदर ने कुफ्फारे मक्का को झंझोड़ दिया। अगले साल उन्होंने दोबारा हमला किया, जंगे ओहद। 700 मुसलमान, 300 मुनाफिकीन रास्ते से पलट गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों को पहाड़ी पर तैनात किया कि पिछले रास्ते से दुश्मन न आ सके, मगर चंद तीरंदाजों ने माले गनीमत की लालच में अपनी जगह छोड़ दी। खालिद बिन वलीद ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पीछे से हमला किया। बद्र के फातिहीन को ओहद में शिकस्त का सा मंजर देखना पड़ा। हज़रत हमज़ा शहीद हुए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, खून बहा, मगर इस दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की बजाय सुलहो दरगुजर का रास्ता दिखाया। फिर खंदक का मारका आया। मदीना के गिर्द एक बड़ी खंदक खोदी गई ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। 10,000 कुफ्फार का लश्कर, मगर मदीना महफूज रहा। इन अय्याम में मुनाफिकीन का किरदार भी वाज़े हुआ और यहूदी कबाइल जिन्होंने मीसाक़े मदीना तोड़ा, उनके साथ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक सलूक किया गया। फिर सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया। आपने ख्वाब देखा कि मुसलमान मक्का जा रहे हैं।
तवाफ करने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ रवाना हुए, लेकिन कुरैश ने रास्ता रोक लिया। ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के हक में मुआहिदा ना था, मगर ये सुलह इस्लाम के फैलाव का जरिया बनी। इसी सुलह के बाद बहुत से बड़े सरदार मुसलमान हुए। उन्हीं दिनों हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर बिन अलास और दीगर इस्लाम ले आए। अब मक्का की फतह करीब थी। कुरैश ने हुदैबिया का मुआहिदा तोड़ दिया, यही बहाना था, और अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए और बग़ैर जंग के फतह मक्का हो गया। वो शहर जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को शहीद किया, आज वही शहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका खड़ा था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ना इंतकाम ना बदला, सिर्फ माफ़ी। यही शान नबूवत थी जिसने दिल जीत लिए, दुश्मन को दोस्त बना दिया। फतह मक्का के बाद इस्लाम अरब के कोने कोने में फैल गया। हज, ज़कात, रोज़ा और दीगर अरकान मुकम्मल हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा किया, मैदान अरफात में आखिरी खुतबा दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। ये खुतबा इंसानियत का सबसे अजीम मंशूर था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर फोकियत नहीं, कि सब मुसलमान भाई भाई हैं, कि औरतों के हकूक अदा करो, कि सूद से बचो, कि अमानत अदा करो। फिर कुछ ही दिनों बाद वो लम्हा आ पहुंचा जो हर आशिक़ रसूल के लिए सबसे तकलीफदा है। 12 रबीउल अव्वल का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चमकता था। मस्जिद में पर्दा हटाकर सहाबा को आखिरी बार देखा, मुस्कुराए और वापस चले गए। दुनिया की सबसे मुक़द्दस हस्ती, सबसे अजीम रहनुमा, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला अब इस दुनिया में नहीं था। 12 रबीउल अव्वल का वो दिन, मदीना की फ़ज़ाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कायनात रुक गई हो, जैसे हवाएं भी थम गई हो, जैसे सूरज भी गम में छुप गया हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजिस्मे अतहर रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में आराम कर रहा था। सहाबा की आंखों में आंसू थे, दिल फटे जा रहे थे। हज़रत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए। जो कहे कि मोहम्मद वफ़ात पा गए हैं, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। लेकिन फिर हज़रत अबू बकर आए, हुजरे में दाखिल हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से चादर हटाई, झुककर माथे पर बोसा दिया और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको 2 मौतें नहीं देगा। एक ही बार आपने चखा और अब हमेशा की जिंदगी है। फिर बाहर आकर वो अल्फाज कहे जो क़यामत तक के लिए दलील बन गए। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ज़िंदा है, कभी नहीं मरेगा। आयात तिलावत हुई, सहाबा फूट फूट कर रोने लगे। मदीना की गलियां आंसुओं से भर गईं। मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंची, लेकिन ईमान ने हाथ नहीं छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, मगर उनका पैगाम, उनकी सुन्नत, उनकी रोशनी बाकी रही। वो उम्मत जिसे रेत पर खड़ा किया गया, वो दुनिया के निस्फ हिस्से तक फैल गई। वो गुलाम जो मक्का में मारा जाता था, वो दुनिया के तख्त पर बैठा, मगर अदल के साथ। ये था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, दिलों को बदल देने वाला, किरदार से दिल जीत लेने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपका सब्र, आपकी मोहब्बत, आपकी रहमत, वो हर यतीम के आंसू में झलकती है, हर गरीब की मुस्कराहट में चमकती है और हर अजान की सदा में गूंजती है। अशहदु अन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यही वो चिराग है जो जलता रहेगा, यही वो सच है जो कभी मिट नहीं सकता, यही वो रोशनी है जिसने अंधेरों को शिकस्त दी थी, और यही वो मोहब्बत है जो हर मोमिन के दिल में धड़कती है। अगर कभी जिंदगी में गुमराह हो जाओ तो उस सहराई नबी की सीरत पढ़ लेना, जो अनपढ़ होकर भी दुनिया को इल्म दे गया, जो यतीम होकर भी इंसानियत का बाप बन गया, जो तन्हा होकर भी उम्मत को जोड़ गया। सलाम हो उस हस्ती पर जिसने बुतों से भरे अरब में वहदानियत की सदा बुलंद की और अपनी उम्मत के लिए आखिरी वक्त तक दुआएं मांगता रहा, उम्मती उम्मती। ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, ये कहानी है इंसानियत की सबसे अजीम रोशनी की, एक ऐसे चिराग की जो कभी बुझा नहीं और जिसकी रोशनी क़यामत तक फैलेगी।
बस शर्त ये है हम दिल से पुकारें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली आल मोहम्मद।